Okay, so I start my today's session by opening this Python file with script mode. And what is the step? Just right click on it, edit with ideally, and edit with ideally and the with version. I click on it, and there is my editor option. And yesterday I told you what this screen is called, where I write my whole code in a script mode. This is a script mode because I can write multiple lines. Okay, as you can see all. But this screen, I told some name, some terminology related to this screen, and that terminology is source screen. Remember, source screen, where we write our code. The window, this is the maximum window where we write our code, that is called the source screen. Okay, was that visible to you? Visible to you? Okay. So let me write some more code, some more stuff with the print function. And the last we have discussed that we can print any message, either that is meaningful or either not. And if I do or F5, or there is, I told you yesterday that run module, and the module meaning is, what is the module mean? Python file. ठीक है, like I have a learn.py, I denoted it, this is a Python file. And in other words, I also can say this is a Python module. Clear? Module and Python file, these are the alternative names for same thing. मतलब इस फाइल को मैं पाइथन मॉड्यूल भी बोल सकता हूं, इसी फाइल को मैं पाइथन फाइल भी बोल सकता हूं. ठीक है, दैट्स व्हाई the terminology is here run module, and the shortcut key is directly we can press F5. The same content will be printed on my screen. ठीक है, so printf function, this print function is doing what? It printed or it display the thing whatever we write inside the double quotation or single quotation mark inside this parenthesis on the screen. Is it clear? Either that is meaningful or not. Yesterday I told you that कोई मीनिंगफुल मैसेज है, मीनिंगफुल नहीं है, एनीथिंग, एनीथिंग व्हाट आई वांट टू डिस्प्ले, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 as well as it will printed on the screen. ठीक है, no matter what you are writing, but everything will be printed on simple on screen, right? So we discussed like last this, I already told you one type function and one id function. ठीक है, anyone can help me to explain this, what is the use of type function, what is the use of id function? Up to now we use this type and id function on interactive mode only. Interactive bole to on script mode. What happened there, like if I'm writing 10 inside the type, it immediately return me the output. Either you can assign that value to some variable, and after it you print this. ठीक है, in both condition it return the type of the value, okay, or type of the variable. In the both case, either you can pass directly value inside the type function, or either you can pass a variable which have some value. Is it clear or not? ठीक है, so what happened there? If I use this type function directly, I can get the output. But with the skip mode, it's not possible. This not possible. Why this not possible? Because if I'm writing some I'm declaring some variable a equal to true, and I want to print this. I want to run this code. Anybody can expect what will be the output? Okay. No output will be there. You need to understand one simple thing. The thing is that on this console screen or on this output screen, what in front of me and you, this here we can print anything by help of print function only. Is I'm using any print function? No. Then how you can expect any output? No output will be there. Then what I need to do? This type function returns the type of the variable. Agree? Or type of the value. Agree? Okay. This type function returns only, but not printed on console screen. And which function is used to print that thing on the console screen? By help of print function. So what we need to do inside the print function, we call this type function. And what happened? This type function
returns something to print function, and print function return that thing to the console screen or output screen. So this is the way how we can check the type of any data on script mode. Is it clear? So let me run this and you can get class boot. Okay, so this statement type function return to the print function, and print function return that thing to the console screen. I think clear to all. Okay, one more thing we have, like id function do what? id function returns some address of a variable. ठीक है, means this value is stored in some memory area, है ना? That memory area have some address, and that address is referred by a. Clear है? ठीक है, like you live in some house, this house has some address, and that address is referred by you. If someone is asked, hello Aditya, where do you live, what is your house number, so you simply tell the house number, that because you belong that house number, right? So same way if I show you some memory representation, sorry, like like a is some variable, hold some value. Clear hai? Then internally what happened with it? Internally a memory block will be generated. Clear? Where where true is stored. Clear? This memory has some address. ठीक? Address may be anything, and this memory has some address, like 1 2 3 4 5. Some address is there. Okay, what a is doing, a just referring to this address only. A directly cannot store that value. A just referring this memory address only, which hold some value. Okay, okay, because house hold the member, not house number. Who hold the member? House hold the member. That house number is just represent that location of the house, and the home persons who living that house represent that home or that address only. If no person is living that house, then who will represent that house? No one. So variable a is just represent this address or this value only. So if I do id of a, if I do id of a, it returns me address of a. Okay, if I do print of a, print of a, it return value of a. Is it clear? Point out. Okay, so here I want to ask, what is the output of this this statement? What is the output of this statement? You know the output of this statement? Class bool, no problem at all. If I run this code, what is the output of this statement, Tanvi? Assume there is some address 1 2 3 4 5. Maybe some different addresses be there, definitely, but assume some 1 2 3 4 5 is the address. Clear hai? Assume only. Then then what happened when we run this code? The first line will be executed, a variable is created and assigned a value true. No doubt. The next statement is what happened? देखिए, आपको मैथ का रूल अगर मैं बताऊं तो मैथ का रूल ये है कि अगर ब्रैकेट है तो सबसे पहले अंदर वाली चीज एग्जीक्यूट होती है, बाहर वाली नहीं। तो इस प्रिंट के पहले से एक पैरेंथेसिस है, उसके अंदर फिर से एक वैल्यू है, तो पहले ये एग्जीक्यूट होगी, यानी कि टाइप ऑफ ए कैलकुलेट होगा, जो भी है यानी उसका टाइप रिटर्न करेगा, फिर प्रिंट फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। समझ रहे हो सिनेरियो ऑफ द रनिंग द कोड? पहले टाइप फंक्शन उसका टाइप एग्जीक्यूट करेगा, फिर प्रिंट फंक्शन को देगा, प्रिंट फंक्शन उसको हमारे आउट कंसोल स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा। अभी तक कोई डाउट नहीं है। The next statement is id of a, then what will be the output? This statement will be the output. I know that definitely ये आएगा, ये आएगा। Is this statement print anything on the console or not? This is my basic question, Tanvi. Yes, think about it. Either wrong or right, no matter at all. Yes, online people can give the answer on the chat box as well, but I know that you can give the answer very well.
Okay, community answer, yes. Aditya, nothing. Sampark, nothing. By this statement only I am asking. Pavan, nothing. Right. पूजा, नो आइडिया। ओके, देखो मैंने जैसे कि बताया कि ये जो फंक्शन है ये आईडी रिटर्न कर रहा है, ठीक है, कर रहा है, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये कंसोल पे नहीं शो करेगा। इफ आई रन दिस, इफ आई रन दिस, कंसोल पर नहीं शो करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कंसोल पर कुछ भी प्रिंट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्रिंट फंक्शन पर रिस्पॉन्सिबल है। क्या मैंने ये आईडी को प्रिंट फंक्शन में यूज किया? नहीं किया, तो डेफिनेटली आउटपुट पे कुछ नहीं आएगा। ठीक है, कैसे करेंगे? सेम वे विद द टाइप फंक्शन, इनसाइड द प्रिंट वी कॉल आईडी फंक्शन। ठीक है, so what happened with it? the bool the bool will be printed and there is some id or address of the a is there. ठीक है, and the next statement, if I print the a, then what I need to do? Print a. ठीक है, don't try to like this. Then what happened with this? A will be printed, but if I'm writing like this, the value of a will be printed. Clear? Getting the difference? Okay, let me run this, and your output is bool, first statement. Second statement, third statement is id of the variable. You can see here id of the variable, and the third one is the value of a. The value of a is true, and it the same identically is printed on the console screen. Is it clear to all? Okay, no doubt. Okay. Let me take some more examples, like 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 if suppose I have multiple variables like a comma b equal to 10 comma 20. Possible or not? Possible. 10 assigned to a, 20 assigned to b. Then I want to print the value of a. Any doubt? No. I want to print the value of b. Any doubt? No doubt. Can we run this? Okay. Definitely 10 and 20. Clear? Next movement, sir, is it possible we can print the both value by a single print statement? A comma b, a comma b. If I do a plus b 7, then it will provide the addition of both values. Okay, so we use a comma b, like a is a variable. To separate the same thing from another thing, we use comma operator. What we use? Comma operator. So a comma b we will do. So what happened? 1020 will be printed first because this statement we have, and to remove the confusion I can skip this statement also like this, so you can understand. So first value will be printed a and second will be printed b. So my simple question, the output will be 1020, 1020, 1020. थर्ड लाइन विल बी द आंसर, सिक्स लाइन विल बी द आंसर, और ये एक आउटपुट है, ये एक आउटपुट है, और ये एक आउटपुट है। आई नो कि इसका आंसर देना पॉसिबल नहीं है, बट आई एम जस्ट गेस वर्क। सिक्स, ओके, सिक्स, सिक्स, ठीक है। एज पर द प्रीवियस नॉलेज, डेफिनेटली इफ आई एम लर्नर ऑफ दिस पाइथन, तो मैं भी बोलता सिक्स, ठीक है, बट द आउटपुट विल बी फोर्थ वन, 10 space 20. Then why this happening? Let me show you later. ठीक है, 10 space 20. ठीक, and why this happen? Actually, this comma operator internally provide space. Okay, this internally provide space. The happening with other language, if I print inside the other language, the output will be 10, 10, 20. ऐसे ही आता। बट दिस इज नॉट ए मीनिंगफुल आंसर। तो हमें क्या करना पड़ता था, जनरली हमें क्या करना पड़ता था, अगर मैं एक यहीं पे ऐसे स्टेटमेंट लिख देता हूं, प्रिंट एफ, हमें करना पड़ता था कि भाई पहले ए प्रिंट करो, कॉमा, फिर स्पेस डालो, फिर बी डालो, हमें कुछ ऐसा करना पड़ता था। तो वी नीड टू राइट सम एक्स्ट्रा कोड। पाइथन ने पहले ही बोल दिया कि भाई सिंपल रखेंगे, ठीक है, आप मल्टीपल वैल्यू प्रिंट करा रहे हो, स्पेस हम खुद दे देंगे, टेंशन मत लो, ठीक है, बस आप प्रिंट कराओ। क्लियर? ओके, later we can change with this space with any character also, later we can do, okay, abhi nahi kar rahe hain without, nahi, okay. Now my question is, let's suppose I said just wait, I'm writing name equal to
name equal to Python, name equal to Python, ठीक है, and I want to print name, then output will be नहीं आएगा, क्या है, तो क्या हो गया, दो बहुत सारे लाउड, ओके, व्हाट डू यू से, सेम, नहीं क्या सेम आएगा, the answers you are connected with these answers, or you want to say कि I am writing Python and output will be the Python, okay, output will be the Python और इसका चलते हैं, ठीक है, तो आदित्य, संपर्क एंड सावन एंड कैलाश, आप लोगों का आंसर सही है, मैंने आपको बच्चों पहले ही बताया था, these these must be same, सेम कहाँ है, here I am using the double quotation mark and here I am using single quotation mark, मैं फॉन्ट और बड़ा करूं, अरे नोट के साथ याद भी रखना है ना बेटा, फॉन्ट और बड़ा करूं, आई थिंक दिखना तो चाहिए, ठीक है, क्लियर, ठीक है, सो here we have double quotation mark, here we have single quotation mark, it's both things are matched or not, एक में काला जूता पहन लो, एक में रेड पहन लो, तो क्या कहेंगे लोग, पागल कहेंगे ना, ठीक है, तो सेम सिचुएशन, आइदर यूज सिंगल और आइदर यूज डबल, ठीक है, नाउ दिस स्टेटमेंट इज ओके एंड विल बी प्रिंटेड पाइथन ऑन द स्क्रीन विदाउट, now my requirement is that output should be, my expected output is I am learning and फिर यहां पर पाइथन प्रिंट हो, ठीक है, नेक्स्ट मूवमेंट, अगर मैं यहां पे जावा लिख दूं मान लेते हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट सेम रहे, ठीक है, और यहां पर फिर पाइथन की जगह जावा, समथिंग माई रिक्वायर, ठीक है, तो मींस कुछ पार्ट मेरा इसमें फिक्स है, जो कि ये वाला पार्ट है, और ये वाला पार्ट मेरा अकॉर्डिंग टू दिस वेरिएबल वैल्यू चेंज हो रहा है, क्लियर है ना, मैंने यहां पे सी लिख दिया तो आउटपुट आएगा आई एम लर्निंग सी, ठीक है, तो ये वाला पार्ट मेरा वेरिएबल पार्ट है, ठीक है, और ये वाला पार्ट मेरा कैसा है, फिक्स पार्ट है, ठीक है, तो फिक्स पार्ट जो मेरा है वापस अपन पाइथन लिख देते हैं, पीवीएम पूरा मान जाएगा, ठीक है, तो यहां पर जो मेरा फिक्स पार्ट है उसको लिखूंगा मैं लाइक दिस, आई एम लर्निंग, ठीक है, और इसके बाद मुझे चाहिए, ठीक है, तो अगर बच्चों मैं इसको कुछ ऐसा कर दूं, आउटपुट पे क्या आएगा, आउटपुट आएगा आई एम लर्निंग नेम, बट नेम मेरा एक वेरिएबल है, उसकी मुझे वैल्यू चाहिए, तो हम कैसे प्रिंट करा रहे थे वैल्यू, तो पहले मेरा मैसेज कॉमा नेम, इजी, क्लियर है, तो आई विल गेट द सेम आउटपुट वेयर आई एक्सपेक्टेड इट, आई एम लर्निंग पाइथन, द नेक्स्ट मूवमेंट इफ आई चेंज माई लैंग्वेज, आई एम लर्निंग HTML प्लस CSS, ऐसे मैंने लिख दिया, ठीक है, तो द सेम आउटपुट विल बी गेट आई एम लर्निंग HTML without, no, right, my next requirement is I am writing a VER equal to 3.0.7, ठीक है ना, I am writing it, तो I want my output and I request you all please show me the output. The online people can write that statement on the chat box as well, and the offline people can write this statement on the notebook as well. So I am learning Python, I am learning Python version 3.10.7, ठीक है, दिस थिंग आई हैव एज ए इनपुट एज ए वेरिएबल, और उससे आपको ये स्टेटमेंट जनरेट करनी है, क्लियर है, मींस दिस पार्ट इज ए वेरिएबल पार्ट, दिस पार्ट इज द फिक्स पार्ट, हाउ यू कैन राइट दिस स्टेटमेंट, प्लीज राइट, you have notebook, no? I can arrange something, अरे आओ इधर, ये वाली कवर्ड खोलो, ये पीछे वाली,
प्लेन क्यों वेस्ट कर रहे हो, मेरे पास रफ पेपर है, पीछे खोलो, इसको खोलो। हाँ यही बात, ये आपके लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर बहुत सारे रफ पेपर, लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट 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 ऊपर, कोई भी 2 पेज उठा लो। हाँ, कोई किसी की चीटिंग नहीं करेगा। हाँ ले लो। ये स्पेक किसका है, आप यूज़ क्यों नहीं कर रहे हो? ओके, लेट मी चेक द आंसर ऑन ऑनलाइन पीपल। पेन वहाँ रखा है, वहाँ से लो, इसके नहीं है। क्वेश्चन समझ गए, ये आउटपुट चाहिए, ये हमारे पास वेरिएबल है। Received one answer, I think. Good job, Anushka. And this is some for you, something like printing ABC, right? Good job. Why you provide this parenthesis? हालांकि आउटपुट आ जाएगा, क्यों दिए हैं एक्स्ट्रा पैरेंथेसिस, क्यों दिए हैं? हाँ इसकी जरूरत नहीं है। Two mistakes, one mistake is there. This P is a capital or small? P is small or capital? Small. कहाँ है P, कौन सा वाला P? हाँ स्मॉल, ऐसे बनता है P स्मॉल। देखो इधर, हाँ ये यहाँ पे ऐसे होगा, ऐसे। सेकंड लाइन है, इसमें आई एम लर्निंग, अगर डायरेक्ट लिखें और प्रोफेशनल मत नेम में लगा दी तो क्या होगा? तो नेम एज इट इज प्रिंट हो जाएगा ऑब्वियसली। नहीं नहीं, तुम्हारे कहने का मतलब है इस पर हम ये लगा दें, फिर तो एरर आ जाएगा ना। आई एम लर्निंग है क्या, ये कोई वेरिएबल तो है नहीं, और दूसरा वेरिएबल भी नहीं है, दूसरा वेरिएबल के रूल भी नहीं है कि आप स्पेस के साथ जनरेट करो, पॉसिबल ही नहीं। हाँ वी कैन डू जस्ट वेट। ठीक है, अच्छा और भी मिस्टेक्स हैं, देखो यहाँ ये आएगा, ये डबल अलाउडेड और नॉट अलाउडेड तो है बट रिकमेंडेड नहीं, ठीक है चलो कोई बात नहीं। एंड ये यहाँ पर बंद भी होगा और उसके बाद ये कॉमा आएगा, ठीक है अब ठीक है। चलो ऑल डन, कैन वी डू नेक्स्ट टास्क? My next requirement is age equal to age equal to we take some sweet age 23, ठीक है, किसी को ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। एंड I want my output, expected output, I am year old, this is my expected output, and this 23 is a variable, ठीक है करो, means this variable is there, it's a minor mistake, so दिस एज इज ए वेरिएबल, ठीक है, तो यहाँ पर एक कॉमा आएगा तो आइडेंटिफाई नहीं करेगा, और यहाँ पर एक कॉमा आएगा, ये फिक्स पार्ट हो गया, ये वाला फिक्स पार्ट हो गया। अब ठीक है, पेन वहाँ से ले लो, बहुत सारे पेन रखे हैं। एक माइनर से मिस्टेक है, यहाँ पे कॉमा आ रहा है क्योंकि इसको आप सेपरेट करोगे ना इससे। एक तो ये आई एम फिक्स पार्ट है, इसको स्ट्रिंग में रखते हैं, एज वेरिएबल है, बिल्कुल ठीक करा है, फिर से ये फिक्स पार्ट है इसको, बस ये मिस्टेक, बाकी सब बंद करो, पास वालों को ध्यान रखो।
उनको भी सीखने दो। परफेक्ट, परफेक्ट। पीछे पलटो, उसको पलटो। पड़ोसियों को ध्यान रखो भाई, उनको भी सीखना है। तो आप दिखाते रहोगे फिर कैसे सीख पाएंगे वो। कोई बात नहीं, मैं बताऊं। चलो, देखो क्या है कि ये वाला पार्ट फिक्स पार्ट है, ठीक। एज हमारा वेरिएबल, ये वाला पार्ट वेरिएबल है, ये फिर से फिक्स पार्ट है, ठीक है। तो क्या करेंगे, प्रिंट फिक्स पार्ट आई एम। वेरिएबल पार्ट लिखने से पहले कॉमा लगाना पड़ेगा क्योंकि अलग है। अगर हम कॉमा नहीं लगाएंगे तो ये इसको पार्ट मान लेगा एंड जनरेट एरर, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक सिंगल कॉमा देंगे सेपरेट करने के लिए। फिर हमारे पास फिर से एक और फिक्स पार्ट है, लेकिन फिक्स पार्ट फिर से स्टार्ट हो रहा है, फिर से क्या देना पड़ेगा, कॉमा देना पड़ेगा एंड ईयर, ईयर, ठीक है। व्हाट हैपन हियर, यहां पर कॉमा दिया, ऑटोमेटिकली एज के बाद जो स्पेस दिख रहा है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहां पर भी स्पेस दिख रहा है, वो इस कॉमा की वजह से ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। इफ आई रन दिस लाइन एंड आई विल गेट आई एम 24, क्लियर। सही है आपका, सही। अच्छा, इतना कर लिया, कोई बात नहीं, क्लियर है, ठीक है। चलो एक स्टेटमेंट और करते हैं, बहुत सिंपल सा। My expected output is this is my expected output. 100 is a variable here. अब आपके पास दो टास्क हैं, एक वेरिएबल क्रिएट भी करना है, उसको वैल्यू असाइन भी करनी है 100, और फिर ये मैसेज भी हमें चाहिए, ठीक है। अभी तक मैं सिर्फ आपसे स्टेटमेंट करा रहा था, वेरिएबल डिक्लेयर करके दे रहा था, अभी आपको दोनों चीजें करनी है। तो ये वाला पार्ट फिक्स है, ध्यान रखो, ये वाला पार्ट फिक्स है। फिक्स पार्ट कैसे लिखते हैं वो आपको पता है। ये वाला पार्ट वेरिएबल है, एक डी नाम का वेरिएबल लो, उसमें ये वैल्यू असाइन कर दो, हो जाएगा, करो। हाँ जी, नहीं नहीं, 100 तो सिंपल एक, हाँ परफेक्ट है। बस स्मॉल मिस्टेक, वेरिएबल ऑलवेज इन स्मॉल, रिकमेंडेड है, रूल नहीं है, रिकमेंडेड है, ठीक है। वेरी गुड, देखना नहीं है। देखो एक वेरिएबल लो, लो ए नाम का वेरिएबल, उसको वैल्यू असाइन करो, संपर्क कॉपी करो, यहाँ पे रखे करो, एक ए नाम का वेरिएबल, और आई रिकमेंडेड यू कि ऑल वेरिएबल टेक इन स्मॉल, ठीक है, कैपिटल नहीं लेना है। एक नाम का ए नाम का वेरिएबल, आप डी नाम का वेरिएबल ले सकते हैं, उसका डायरेक्टली क्या, डी फॉर डिजिट, यू आर टॉकिंग अबाउट सम डिजिट, सो ठीक है। तो डी इक्वल टू 100, राइदर वी कैन से ए इक्वल टू 100, डी इक्वल टू 100, ठीक है। अब एक टास्क हमारा हो गया कि मैंने एक वेरिएबल लिया डी इक्वल टू 100, ये मैंने कर लिया। अब क्या रह गया, बस ये मैसेज देना रह गया, करो। देखो पेशेंस एंड मेहनत ये दोनों नहीं छोड़नी है, एंड उम्मीद है कि यहाँ पे कुछ बच्चे थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट हैं और थोड़ा सा डाउन है, लेकिन इसके लिए टेंशन नहीं लेनी है, ना तो उन स्मार्ट बच्चों को लेनी है अरे ये नहीं कर पा रहे, उनको भी नहीं लेनी है, जो नहीं कर पा रहे हैं उनको भी ये नहीं सोचना है कि अरे हम नहीं कर पा रहे। मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें बस हार्डली 2 से 3 दिन होंगी जो आपको फील होगा, उसके बाद आप लोग भी लगभग इनकी तरह काम करने लगोगे, ठीक है। बट फोकस करना है, हर एक पॉइंट पर फोकस करना है जो मैं बता रहा हूँ। Remember your last statement, how can we do this? This is the fixed part and this is the variable part, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, d is 100। कैसे करेंगे, तो पहले प्रिंट फंक्शन लेंगे और हमें सबसे पहले क्या चाहिए, जो वैल्यू वो चाहिए, तो पहले डी प्रिंट कराएं, कॉमा, और फिर ये फिक्स स्टेटमेंट यहाँ लिखते हैं। मैं कॉपी कर रहा हूँ, मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। एंड क्लोज दिस, हो गया मेरा काम।
इतना ही करना था एंड यू कैन सी द आउटपुट। पहले आउटपुट देख लो आप लोग, F5 प्लस F5, 100 इज द 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। इससे पहले कर लिया, बाद में कर लिया, लास्ट में भी कर लिया, ठीक है। तीन तरह की स्टेटमेंट जनरली यूज है। हाँ ठीक है, हाँ परफेक्ट, नहीं परफेक्ट, कोई परफेक्ट, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देख के करो लेकिन करो, खुद से करो, कोई बात नहीं। यू आर लकी यू गेट दिस टाइप ऑफ टीचर जिनका अपना भी खुद का इतना पेशेंस है। मेरे को ऐसे टीचर नहीं मिले सीरियसली, ठीक है। लाओ अगेन देखो, देखो डी लिख दिया, अब यहाँ से फिक्स पार्ट था, ये आपने बंद किया, स्टार्ट नहीं किया ना, करो सर। एंड अभी तक आप लोगों ने पीसी पर प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं की है ना, पता चल गया। आपने भी नहीं की, आपने किया, सॉरी आपने नहीं की। संपर्क, संपर्क फोन नको जेब में, ऐसे मत करो यार, मेहनत टाइम खर्च कर रहे हो। अच्छा कोई बात नहीं, करेंगे करेंगे करेंगे, सब करेंगे। हाँ वो देखो 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 मैं बताता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया नेम इक्वल टू, अब सोचोगे सर करके नहीं दिखाना चाह रहे हैं, मैंने लिखा नेम इंटू 108, ठीक है, बस सिंपल। आगे स्पेस ये करना, बिना स्पेस दिए तो नहीं होगा, फिर कैसे, पॉसिबल ही नहीं है वो तो। फ्री में दे दिया, वो तो करना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं, ठीक है डन। चलिए हाँ, नहीं कॉमा सेपरेट करने के लिए यूज होता है, इंटरनली कॉमा देने से बाय डिफॉल्ट स्पेस आता है, कैसे आता है अब हम उस पर डिस्कस करेंगे। नहीं वो प्रिंट स्टेटमेंट का पार्ट है, मतलब व्हेन यू यूज इनसाइड दिस, सो दिस इज आई एम, देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, वैल्यू कॉमा डॉट 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 का मतलब क्या है कि एनी नंबर ऑफ वेरिएबल यू कैन प्रिंट। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 कॉमा 20 कॉमा सॉरी 20 कॉमा 30 कॉमा 40 कॉमा 50, ठीक है। अगर मैं ये कॉमा नहीं लगाऊंगा तो ये क्या मानेगा, 1020 मानेगा इसको, बट आई वांट टू सेपरेट दिस, कैसे सेपरेट करूं, स्पेस अलाउड नहीं है, यहाँ पर अलाउड क्या है, कॉमा अलाउड है, देन आउटपुट विल बी 10 स्पेस 20 स्पेस 30 स्पेस 50, सिंपल। और इंटरनली सेपरेट करने से वहां पे स्पेस देता है, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई, क्यों देता है अब इस पर डिस्कशन करते हैं, ठीक। देखो ये जो स्टार्टिंग का पार्ट है, ये जो पार्ट मैंने लिखा, एनी नंबर यू कैन, ठीक है, यहां पर भी ये नंबर आपका लास्ट होता है, उसके बाद एक इंटरनली आर्ग्यूमेंट है सेपरेट के नाम से, किस नाम से, सेपरेट, ये इंटरनल एक आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, सेपरेट। बाय डिफॉल्ट ये हिडन है, बाय डिफॉल्ट इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, अगर नहीं लिखेंगे तो ये जो भी कंटेंट हम लिखते हैं जो कॉमा से सेपरेट करते हैं, मैंने लिखा सेपरेटर ऑपरेटर कौन सा है, कॉमा, तो बाय डिफॉल्ट जो इसकी वैल्यू है बच्चों इंटरनली, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा इंटरनली, वो है ऐसे, एक सिंगल स्पेस। कैन आई मॉडिफाई इट, हैप्पीली मॉडिफाई इट। अब मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू को खत्म कर दिया, मतलब जो स्पेस था सिंगल उसको मैंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, देन द आउटपुट विल बी 10 20 20 40 50 विदाउट स्पेस। गेटिंग माय पॉइंट, दोबारा बताऊं, अब सपोज सर यहां पे प्लस लिख दें तो 10 के बाद प्लस, 20 के बाद प्लस, सेपरेटर क्या आएगा, सेपरेटर क्या आएगा, जो स्पेस सेपरेटर आ रहा था क्या आएगा, प्लस आएगा, गॉट इट। डिफॉल्ट क्या है इसकी वैल्यू, स्पेस है, ठीक है, डिफॉल्ट स्पेस है, डिफॉल्ट या हिडन भी है तो यूज करने की आवश्यकता नहीं है, बट somehow I required some changes, so you can perform externally, okay sir, if I do some star symbol here, or if I do some dollar symbol, some hash symbol here, ठीक है, can the separator will be dollar, definitely dollar,
द डिफॉल्ट वैल्यू इज, यस, डिफॉल्ट वैल्यू इज, ठीक है। ओके, वन मोर थिंग आई हैव, एक्सलेशन, इसका क्या मतलब होता है, न्यू लाइन, क्या होता है, न्यू लाइन। अब जहां जहां पर सेपरेटर है वहीं से न्यू लाइन आ जाएगी, गेट माई पॉइंट, लेट मी शो, आ रहा है समझ में, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू इज, ठीक है, लेकिन लेकिन लेट सपोज आई प्रोवाइड सम बैकस्लैश इन, ओके, some other print statement I have, some other print statement I have, and the value is 100, 100, 200, 300, 400, and 500. So I modified the separator value for this statement only, for this statement only, not for this statement. It will work as usual in the style, the default style, means 100 space 200, 300 space 400, 500. Because I use or modify this value for this statement only, this will not applicable with the next statement of this statement. Either I can use that 100 statements, so just wait, wait, I can use 100 statements, but it will not applicable for others. If you want to applicable for all, you need to apply either you want to apply the same, or either you want to apply the some different concept, so you need to apply or you need to provide independently, ठीक है। अगर मैंने किसी एक में कर दिया तो वो सबके लिए लागू नहीं होगा, क्लियर है। अब ये इन तीनों में मैंने चेंज किया तो इन तीनों के लिए लागू होगा, बाकी सब अपने एज इट इज जो डिफॉल्ट स्टाइल है उसी में प्रिंट होंगे, ठीक है। तो देखो मैंने बैकस्लैश एन दिया था वैसे आ गया, उसके बाद मैंने परसेंटेज दिया था परसेंटेज आ गया, उसके बाद मैंने हैश दिया था हैश आ गया, लेकिन बाकी जो प्रिंट स्टेटमेंट है दे विल वर्क इन ए डिफॉल्ट स्टाइल, क्लियर। कोई डाउट, कोई डाउट, नो, दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट वन मोर थिंग वी हैव, लाइक वी हैव print code line 1, okay. I have some another statement and I have some code line 2 and code line 3, okay. So what I said, if I want to give some extra space between the line, let me show you first, ठीक है। expected यही आना था, कोई डाउट तो नहीं है, code line 1 code line 2 code line 2 expected, sir I want some extra line between them, possible or not, some extra line, कोड लाइन 1 के बाद मुझे एक एक्स्ट्रा लाइन स्पेस वाली चाहिए, फिर कोड 2 के बाद भी एक एक्स्ट्रा स्पेस लाइन चाहिए, कैन बी परफॉर्म और इट नॉट, definitely first we need to provide what, empty print statement, clear or not, clear, yes, okay, let me close this and get some fresh console screen and I run this and I will get the output, clear, okay. And this stuff, the same stuff can be done by another way, like what, okay, you know what, there is some comment option, what, comment, the comment is what, if I enclose this whole content with triple quotation mark only, ठीक है, वन वे ट्रिपल कोटेशन मार्क, मल्टी लाइन स्ट्रिंग व्हेन वी असाइन टू सम वेरिएबल, कैसे, मुझे लिखना है ए डबल डी एड्रेस इक्वल टू 448 कॉमा न्यू शिवपुरी, ठीक है, न्यू शिवपुरी एंड कॉमा न्यू लाइन आई हैव फुलचर, ठीक है, एंड आई एनक्लोज विद ट्रिपल कोटेशन, तो दिस इज कॉल्ड ए मल्टी लाइन स्ट्रिंग, ठीक है। बट व्हेन आई रिमूव दिस वेरिएबल मैंने हटा दिया, देखो सेम सिचुएशन बनी, वेरिएबल मैंने हटा दिया, it becomes the comment now. So what is the meaning of comment here? This part will not executed by PVM, लिखा हुआ है, ये लाइन यहां पे लिखी हुई है, but these lines will not executed by PVM, लिखा हुआ है बट ये हमारी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होंगी। एक तरीका तो ये मैं इसको हटा दूं, भी नहीं रन होगी। एक तरीका ये कि सर somehow I require this code, maybe later, मैं अभी नहीं रन करना चाहता, somehow later I require this code, तो मैंने क्या कर दिया, उसको कमेंट कर दिया, ठीक है। देखो
अब यहाँ पर मैं इनको देखो लाइंस को चेंज कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया 4, यहाँ पे लिख दिया, सो यू कैन गेट सम डिफरेंट स्टफ 5 एंड 6। ठीक है, एंड व्हाट आई एम डूइंग, आई वांट टू परफॉर्म द सेम टास्क जो अभी हमने पहले किया था, उसको सेम टास्क को परफॉर्म करना चाहता हूं मैं डिफरेंट स्टेप के साथ। पहला तो ये बीच में न्यू लाइन देनी है, एक प्रिंटफ दे दो, एम्प्टी प्रिंटफ दे दो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या, मैंने आपको बताया एक कंसेप्ट बैकस्लैश n, जो क्या देता है, न्यू लाइन देता है। तो देखो मैंने क्या किया कि जैसे ही कोड लाइन 4 खत्म हो, एक लाइन तो वो ऑलरेडी देता ही है, हमारा कंटेंट हमेशा न्यू लाइन से आता है, एक लाइन और एक्स्ट्रा दे दे, ठीक है। एंड लेट मी रन दिस कोड, यू कैन सी कोड लाइन 1 एंड 1 एक्स्ट्रा लाइन, ठीक है। ऐसे ही 5 के बाद मुझे चाहिए, तो मैंने यहां पे भी क्या लगा दिया, बैकस्लैश n, ये पूरा लिखना पड़ेगा बच्चों, बैकस्लैश n, इसको हम कहते हैं एस्केप सीक्वेंस। क्या कहते हैं, ESCAPE SEQUENCE, I will provide you in the short notes as well, ठीक है। तो एस्केप सीक्वेंस, तो यू कैन सी व्हाट कि आफ्टर 5 भी एक न्यू लाइन हमें मिलेगी लाइक दिस, एंड आइडेंटिकल आउटपुट और नॉट, ऐसा ये हमने किससे किया था, एक बीच में एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट देके, एंड यही आइडेंटिकल आउटपुट हमने किससे किया, बाय प्रोवाइड ऑफ बैकस्लैश n, BACK बैकस्लैश बैकस्लैश n, ठीक है। वैसे भी किया था, लेकिन वो हमें फिर एक लाइन के लिए ही देगा ऑप्शन, जहां पर हम सेपरेटर अप्लाई करेंगे वो केवल उसी प्रिंट स्टेटमेंट के लिए एप्लीकेबल होगा ना, बाकी सबके लिए तो एप्लीकेबल नहीं होगा। सो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एडिशनली, मतलब वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, देयर आर सो मेनी डिफरेंट ऑप्शंस टू डू सेम टास्क, तो मैंने आपको ये भी बता दिया, ये वर्क कर रहा है। एक्चुअली एस्केप सीक्वेंस हमेशा कोटेशन मार्क के अंदर ही यूज होते हैं, यहाँ पर दो ही एस्केप सीक्वेंस है फिलहाल के लिए, बैकस्लैश n और बैकस्लैश t क्या है बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर। अब आप देख रहे हो कि ये लाइन नहीं रन हो रही, देखो कोड लाइन 1 कोड लाइन 2 कहीं आ रहा है आउटपुट स्क्रीन पे, तो मैं दोबारा रन करता हूं, कहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, सिर्फ 4 5 6 आ रहा है, ठीक है, ठीक है। समवेयर यू कैन सी, जैसे मान लेते हैं कि एक कस्टमर है और एक एडमिन है, एक ही आप देनी है कंपनी को, लेकिन कस्टमर को कस्टमर वाले फीचर देने, एडमिन को एडमिन वाले फीचर देने, दो तरीके हैं, एक तो लॉगिन ही अलग कर दे, ठीक है, दूसरा कि भाई एज ए कस्टमर रजिस्टर्ड करो, तो ये वाली चीजों को मैं क्या कर दूं, अंदर कमेंट कर दूं, तो उसको शो ही नहीं होंगे वो वाला कोड पार्ट, ठीक है, कोड लिखा हुआ है लेकिन शो नहीं होगा। अगर एज ए एडमिन करे या एज ए मतलब कोई दूसरा, मतलब एडमिन मान लेते हैं, एडमिन करे, तो मैं उन पार्ट को क्या करूं कि ये वाला कोड उसको विजिबल हो, तो कोड मेरा एज इट इज लिखा हुआ, मैंने उसमें कोई चेंजेस नहीं किए, बट मैंने उसको क्या कर दिया, कमेंट कर दिया, मींस माय पीवीएम विल नॉट एग्जीक्यूट इट, दैट इज कॉल्ड द कमेंट, एंड दिस इज कॉल्ड मल्टी लाइन कमेंट। देखो हाउ मेनी लाइंस आई कैन कमेंट, मल्टी लाइन, एंड एनी नंबर ऑफ लाइन, और भी हो सकती थी, ठीक है। वन वी हैव सिंगल लाइन लाइक हैश, अब किसी भी लाइन से पहले अगर हम हैश लगा दें तो वो कहलाया जाता है सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है। कब यूज होगा, जब एक ही लाइन कमेंट करनी हो। अब मान लेते हैं कि मुझे पूरा स्टेप कमेंट करना था, मैं बार बार हैश लिखूं, बेटर टू डू मल्टी लाइन कमेंट, एक ऊपर लगाओ लास्ट में बंद कर दो, खत्म हो गया। नहीं, तीन ही लगाने हैं, ठीक है, 3 सिंगल कोटेशन मार्क और आइदर 3 डबल कोटेशन, बट रिकमेंडेड 3 सिंगल कोटेशन मार्क, ठीक है, 3 ही लगाने हैं, ठीक है। इफ आई रन तो कोई ये लाइन रन नहीं होगी, बस सिर्फ क्या आएगा 5 और 6 वाली लाइन रन होगी, ठीक है। तो दिस इज व्हाट सिंगल लाइन कमेंट एंड दिस इज व्हाट मल्टी लाइन कमेंट, क्लियर है, कोई डाउट। यू रिमेंबर वन थिंग, जैसे आपने कुछ भी मान लेते एक रोल नंबर नोट किया है ना, रोल नंबर नोट किया, जल्दी से कहीं पासवर्ड नोट किया, तो आप उसको ऐसे गोला करके या कुछ अंडरलाइन करके आगे लिख देते हो PWD पासवर्ड, लिखते हो ना, क्यों लिख रहे हो, कॉपी के पीछे लिख लिया, मैंने एक पासवर्ड बताया कि भाई ये मेरी क्लास को ज्वाइन करने का एक पासवर्ड है, आपने उसको क्या किया, पासवर्ड को सम प्लेस उसको ऐसे लिख लिया कहीं, ठीक है, पेज पर पीछे लिख लिया, मान लेते हैं पासवर्ड इज 1 2 3 4 सब पासवर्ड, ठीक है। अब आपने ऐसे लिख लिया, लेकिन आप क्या करोगे, इसको ऐसे नहीं छोड़ोगे, आप इसको ऐसे कमेंट वमेंट करके पूरा डालोगे कि भैया ये है मेरा PWD, किसका है ये आपको भले ही याद हो सकता है, आप इसके आगे भी लिख लोगे, अरुण सर क्लास, ठीक है, आपने आगे डाल दिया, ठीक है, तो ये तो ठीक हो गया। लेकिन अगर सपोज करो आपने सिर्फ 1 2 3 4 रखा है, ठीक है, 10 दिन याद रहेगा, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन, उसके बाद आप फुल भूल जाओगे 1 2 3 4 लिखा क्यों है, समझ गए मेरी बात, ठीक है। सेम वे
आई हैव रिटन दिस कोड, ठीक है, सम डिफरेंट एक्सपेक्ट फॉर द कमेंट, क्यों यूज कर रहे हैं, एक तो कि मुझे वो विजिबल नहीं करना है किसी रीजन की वजह से, ठीक है, मुझे कुछ चेंजेस करने थे, मैं चाहता हूँ कि यार ये कोड भी रहे और मेरा पुराना भी जो मैंने चेंजेस किए वो भी रहे, तो मैंने उसको कमेंट कर दिया, एक एक ये एक्सपेक्ट है। दूसरा एक्सपेक्ट क्या है कि भाई मैंने एक कोड लिखा, ठीक है, ये मैंने कोड लिखा और मैंने यहां पर एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिख दिया, ठीक है, टेस्टिंग टेस्टिंग कोड, मैंने ऐसे एक डिस्क्रिप्शन लिख दिया, ये मेरा क्या है, टेस्टिंग कोड है। समझ में आई मेरी बात? अब ये कोड मान लेते हैं कि आप इसी कंपनी में आज काम कर रहे हो, ठीक है, यू आर वर्किंग इन ए कंपनी, ठीक है, और आपने आपने इस कंपनी को छोड़ के कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली। अब यहां पर आप थे एक 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 डेवलपर, वेब वेब डेवलपर, ठीक है, आपके बाद एक सेकंड वेब डेवलपर आया और उसने भी इसी कोड पे काम करना था, ठीक है, ये बच्चों कुछ स्टैंडर्ड हैं जो एज ए प्रोग्रामर हमें फॉलो करने हैं, ठीक है। अब उसने वेब 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 डेवलपर सेकंड ने देखा, अगर आपने यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा होगा तो उसको कोड समझना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है, समझ गए मेरी बात? जैसे आप एक ए डॉक्टर से कुछ ट्रीटमेंट ले रहे हो, उसने जो रिपोर्ट जनरेट की आप उसको संभाल के क्यों रखते हो, कि जब आप डॉक्टर बी को दिखाओगे तो आप वो रेफरेंस करोगे कि सर देखो ये मेरी चीजें हो चुकी हैं, सो ही गेट ए प्रॉपर आइडिया कि भाई ये मेडिसिन चल रही है, ये प्रिकॉशंस हैं, ये चल रहा है, क्या इसमें गलत है क्या इसमें सही है, वो या तो सुधारेगा या फिर बोलेगा कि दवाई तो भाई बिल्कुल ठीक चल रही है, यू नीड टू परफॉर्म दिस मोर थिंग, आपने ये और करना है, ठीक है। अगर ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन वो डॉक्टर ना दे तो क्या होगा, यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है। सो सेम वे दिस इज सम स्टैंडर्ड कि व्हेन यू राइट सम कोड यू प्रोवाइड ए स्मॉल डिस्क्रिप्शन। अब ये स्मॉल डिस्क्रिप्शन मैं आउटपुट स्क्रीन पर थोड़ा ना दिखाना चाहूंगा, इस टेस्टिंग कोड को मैं क्यों आउटपुट स्क्रीन में दिखाऊंगा, अगर अगर मैं इसे कमेंट नहीं करूंगा ये जनरेट कर देगा एरर, ऐसे में लिख ही नहीं सकता कुछ भी, कहेगा व्हाट इज दिस मीन, लेट लेट मी शो यू, एरर आ गया, इनवैलिड सिंटैक्स, कह रहा क्या लिख रहे हो, या तो इसको कंसोल में प्रिंट कराओ, या तो कुछ ये वेरिएबल हो, कुछ तो ऐसा हो, लेकिन अगर कुछ भी नहीं है तो मस्ट यूज सम कमेंट लाइन, ठीक है, मैंने मल्टी यूज कर लिया, अगर आपके पास उतना कंटेंट नहीं है, स्टफ नहीं है, यू कैन यूज अ सिंगल लाइन कमेंट, नो प्रॉब्लम, ठीक है, तो मैंने लिख दिया भाई टेस्टिंग कोड और यहां से अपना मैंने कोड लिख दिया। अब जो मेरा नया जो भी वेब डेवलप वो देखेगा अच्छा ये टेस्टिंग कोड है, इवन आज से 20 साल बाद मैं इस वेबसाइट को देख रहा हूं तो मुझे भी खुद भी मुझे रिमाइंड आ जाएगा अच्छा यहाँ पे टेस्टिंग कोड था, ये मैंने टेस्टिंग पर्पस के लिए लिखा था, दैट इज नॉट डायरेक्टली इंपैक्ट ऑन द आउटपुट स्क्रीन, कुछ बहुत ज्यादा काम का नहीं है, बस टेस्टिंग के लिए मैंने लिखा था। Is it clear? To provide the small description in the code, we required single line comment or multi-line comment. And what happened with single line multi-line comment? It will never execute by the PVM or the interpreter. In every language have this comment system by the different way. Like यहाँ पर hash use हो रहा है, triple line use है, and different language have a different type of comment system. But everywhere the comment part will not executed on the console or on the output screen. Is it clear to all? कोई डाउट? नो? ओके, next we have, okay, we have discussed, you know, we have some test one we have, test two we have, ठीक है, and if I run this code, okay, I close this and again fresh console, test1 test2, ठीक है, then what happened, the happening is this, test 1 is coming from the separate line, test 2 is coming from the separate line. Why? Why? Okay, my question is why. So there is some strong reason behind it. Just like a separator, just like a sep argument. So default value is space. Same way, there is one more argument which is hidden argument, that is end. That is end. The default value of end is acceleration. Okay, what this end do, let me explain you, when the test one will be completed, okay, like let me introduce you once, just a minute, just a minute. Okay, what happened, listen what, like what happened, this is the first line of the code मान लेते हैं,
प्रिंट फंक्शन देखेगा, इसके अंदर क्या लगा हुआ है, ठीक है, सब कुछ ठीक है, सिंटैक्स एरर नहीं है, तो इस टेस्ट को आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कर देता है। ठीक है, मान लेते हैं दिस इज माई आउटपुट स्क्रीन, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेस्ट 1 समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और ये जो मेरा कर्सर है ना, वो इसी तरीके से वहां पर होगा, इसी तरीके से, एंड हिडन फॉर्म में उसको एंड मिलेगा, क्योंकि हर प्रिंट के साथ एंड है ही है बाय डिफॉल्ट, और उसमें वैल्यू क्या है, न्यू लाइन, बैकस्लैशन, बैकस्लैशन बोले तो न्यू लाइन, वो कर्सर को कहां कहां पुश करेगा, न्यू लाइन में ऑटोमेटिकली। ठीक है, फिर जब नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ी जाएगी तो वो कहां से प्रिंट होना स्टार्ट होगी, न्यू लाइन। क्लियर है, दिस इज द साइंस बिहाइंड व्हाई दीज स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम द न्यू लाइन। इन अदर लैंग्वेजेस इट्स नॉट हैपन, they always come from the same line because this stuff is not in other languages. ठीक है, can we stop or can we change this scenario? Definitely we can change, just like we change the separator value, we can change the end value as well. So the default value is backslash n. If I remove it for this statement only, then what happened again listen this story, that what happened again, now the scenario is test1, test1 will be printed, but cursor will not push into the new line. The reason behind, because I change the value of end, बैकस्लैश एन से मैंने उसको बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू थी बैकस्लैश एन, उससे मैंने क्या कर दिया, एम्प्टी कर दिया, इवन स्पेस भी नहीं है, एम्प्टी है। ठीक है, वैल्यू क्या है अभी इसकी, एम्प्टी है। ठीक है, एंड रिमेंबर वन थिंग, टू नोटिस वन थिंग, दिस ऑलवेज कम इन द सिंगल कोटेशन और आइदर इन डबल कोटेशन, नो प्रॉब्लम, बट रिकमेंड इज सिंगल कोटेशन। ठीक है, मैंने उसकी वैल्यू क्या कर दी, एम्प्टी। नाउ कर्सर विल बी पुश इन न्यू लाइन और नॉट, नो, द नेक्स्ट स्टेटमेंट विल बी लाइक दिस, द आउटपुट, द एक्सपेक्टेड आउटपुट इज test1 विदाउट स्पेस test2। ठीक है, लेट मी शो यू, वहां पर test1 के बाद मैंने स्पेस दिया हुआ इसलिए वो स्पेस शो कर रहा है। ठीक है, ताकि कोई इशू नहीं है, लेकिन नाउ यू कैन सी दिस test2 लाइन इज नॉट पुशिंग टू द न्यू लाइन, न्यू लाइन को उसको पुश नहीं किया उसने, बल्कि उसने उसी के साथ कर दिया। लेकिन one thing very important, again I want to focus on this concept not applicable for this line or this line as well. Where I implement this concept, just like a separator or sap, it will applicable for this statement only. ठीक है, इसके लिए वो एप्लीकेबल नहीं है। कैसे एप्लीकेबल होगा, या तो यहां पे लगा दो, अगर नहीं लगाओगे तो दे विल कम टू द इस ओल्ड स्टैंडर्ड। देखो टेस्ट 2 में बाय डिफॉल्ट टेस्ट 3 को कहां पे पुश करेगा, न्यू लाइन में, तो टेस्ट 3 इज कमिंग फ्रॉम द न्यू लाइन। टेस्ट 2 न्यू लाइन से क्यों नहीं आया, क्योंकि यहां पर टेस्ट 1 पुश नहीं कर रहा है कर्सर को न्यू लाइन के अंदर। क्लियर है, कोई डाउट कैसा भी, बैकस्लैश एन से न्यू लाइन आ जाएगा, वो तो डिफॉल्ट इसकी वैल्यू होती है, डिफॉल्ट इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, अगर मैं बैकस्लैश एन के टी लगा दूं, इट इज फॉर द टैब स्पेस, लेट मी शो यू। देखो मैंने लिखा ए स्पेस बी, ये तो ए स्पेस बी का फंड है, मैंने लिखा ए और टैब बी, दिस इज ए स्पेस बी, व्हाट इज द डिफरेंस, टैब लगभग इक्वल टू 2 स्पेसेस। ठीक है, इन पाइथन वी कैन कंट्रोल इट by go to the options configure IDE and go to the highlights key window या here या intended space, अच्छा intended space है, टैब स्पेस नहीं है, टैब स्पेस कंट्रोल नहीं होगा यहाँ से, विंडो से ही होगा, लेट इट बी। तो टैब स्पेस लगभग 1 और 2 लगभग 3 स्पेस के बराबर है, जैसे 1 स्पेस दिया, 2 स्पेस, 3 स्पेस, यानी कि 1 टैब इक्वल टू 3 स्पेस। ठीक है, क्लियर है, समझ में आई वाली बात। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर है तो दोनों में स्पेस, बट टैब इक्वल टू 3, 1 टैब इक्वल टू 3 स्पेसेस और आइदर यू कैन सिंगल स्पेस। तो अगर मैंने यहां पे बैकस्लैश टी यूज किया, आइदर आई कैन यूज वन अनदर थिंग, भाई आप ऐसे स्पेस यूज कर लो। ठीक है, और आइदर आई कैन यूज हियर डायरेक्टली बैकस्लैश टी। तो स्टेटमेंट 2 जस्ट लाइक दिस, देखो यहां पे कोई स्पेस नहीं आ रहा है, कोई पुश नहीं कर रहा है, लेकिन अब क्या होगा, test1 होगा, वो कर्सर को कहेगा कि भाई पुश हो जाओ, टैब हॉरिजॉन्टल स्पेस में पुश हो जाओ, देन प्रिंट test2, और test2 की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे,
एंड बैकस्लैश एन वो कहेगा भाई कर्सर को न्यू लाइन में भेजेगा और टेस्ट 3 को वहां पे पुश करेगा, ठीक है। लेट मी शो यू द आउटपुट। एनी डाउट? टेल मी। नहीं? पक्का? यस एवरीवन? ओके, क्लियर है? ठीक है, तो आई समराइज अगेन ऑल थिंग। print print function print function is used to print any data. Enclosed in single, double or triple quotation as well. I can use triple quotation marks also, no problem at all. We yesterday discussed about it, no problem at all. But not recommended, okay? Only recommended when you want to show your data in the internal data in a single or double quotation mark. Just like I want to show hello in single quotation mark, ठीक है। एंड अगेन हेलो हाउ आर यू, ठीक है, हाउ आर यू, एंड दिस यू आई वांट टू शो इन द डबल कोटेशन मार्क, ठीक है। सो व्हाट कैन आई डू? I can put that all thing in triple quotation mark, then I will get the perfect output hello in single use the double, ठीक है। that only recommended, clear है। but internally this internally is treated as like this। आपको मैं पहले ही बताया कि पाइथन सब कुछ ऐसे ट्रीट करता है, पर लेकिन अगर हमने लिख दिया एक्सटर्नली तो काम नहीं करेगा, हमें उसी स्टाइल में लिखना है। इंटरनली पाइथन कुछ भी ट्रीट करे, ठीक है, लाइक दिस आई विल गेट द दिस आउटपुट। ओहो समथिंग इज रॉन्ग, ठीक है, कोई डाउट? ओनली फॉर दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज रिकमेंडेड, अदरवाइज सिंगल कोटेशन मार्क इज इनफ टू यूज। कोई डाउट? नहीं? ठीक है, ठीक है। One more we learning today, some format function. What? Format function, ठीक है। how this format function work? Let me show you. If suppose just a minute, ठीक, from format function, ठीक है। like I have a name equal to Arun, I have some value age equal to, ठीक है, some data, right? I want to print myself। इसके बाद मुझे नाम चाहिए, अपना नाम चाहिए, तो यहाँ पे मैंने क्या दिया, नेम। समझ रहे हो फॉर्मेट? तो माई सेल्फ फिक्स है, वेरिएबल पार्ट है, एंड आई हैव कंप्लीटेड, ये मेरा वेरिएबल पार्ट है। मैंने लिखा कॉमा एज, फिर कॉमा, यहाँ पे एक्चुअली कॉमा आएगा, ये बंद होगा, एज years of my life, मैंने कुछ लिख दिया, राइट। If I run this, what I get out? Myself Arun and I have completed 30 years of my life, ये आउटपुट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, ये वेरिएबल पार्ट है, ठीक है। तो को ध्यान रखो, फिक्स पार्ट सिंगल कोटेशन मार्क, वेरिएबल पार्ट सेपरेट करेंगे कॉमा से, फिर कॉमा लगाएंगे, समथिंग। आई थिंक any problem with this? Yes? No? Yes everyone? ठीक। so I can write this statement from another way, which is quite easy for you. How? like I want to print I remove this one, okay? मैंने लिखा myself, उसके बाद यहां पर मुझे वैल्यू चाहिए वेरिएबल की, ठीक है। तो वैल्यू की जगह मैं यहाँ पे क्या लगा दूं, 2 करली ब्रेसेस, प्लेस होल्डर है बस। क्या है ये हमारा प्लेस होल्डर, यहाँ पे वैल्यू चाहिए ना मुझे, तो मैंने उसकी जगह एज्यूम क्या कर लिया, करली ब्रेसेस, ठीक है। फिर क्या है, एंड
आई हैव कंप्लीटेड। और फिर यहां पे वैल्यू चाहिए एज वाली, फिर से मैंने क्या लगा दिया, प्लेस होल्डर ईयर्स ऑफ माई लाइफ। डन एंड क्लोज। सब कुछ सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर। क्लियर है? जहां पर वैल्यू चाहिए थी, ठीक है, पहले वाला स्टेप नहीं है, ध्यान रखिए, जहां पर वैल्यू चाहिए थी वहां पर मैंने एक प्लेस होल्डर लगा दिया। कोई डाउट? कोई डाउट यहां तक? नहीं। एंड द लास्ट वी कॉल डॉट फॉर्मेट। डॉट फॉर्मेट, ठीक है, ये एक फंक्शन है। तो पहले किसकी वैल्यू चाहिए? नेम, तो नेम डाल दिया, कॉमा, दूसरी वैल्यू किसकी चाहिए? एज डाल दिया। दैट इज मोर देन इनफ एंड यू कैन सी द सेम आउटपुट अगेन। इट इज, आई थिंक, क्वाइट इजी फॉर यू। एक्चुअली थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा है, तो एक साथ में दिखाने के लिए फॉन्ट एक बार थोड़ा छोटा कर दूं, ठीक है। 22 भी चल जाएगा आई थिंक, या इट्स, ठीक है। सो मैं क्या कर रहा हूं, देखो मैंने क्या किया, ध्यान से समझो। जहां पर वेरिएबल की वैल्यू थी वहां पे प्लेस होल्डर लगा दिए, और प्लेस होल्डर केवल कर्ली ब्रेसेस ही यूज कर सकते हैं, कुछ दूसरा यूज नहीं कर सकते, ठीक है। यहां पर मुझे वेरिएबल की वैल्यू चाहिए थी, प्लेस होल्डर लगा दिए, कोई दूसरी चीज यूज नहीं कर सकते, पूरा डेटा डाल दिया। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि भाई जो डेटा फिक्स वाला है उसे सिंगल कोटेशन के अंदर डालो, फिर कॉमा लगाओ, फिर वेरिएबल लिखो, फिर फिक्स वाला पार्ट सिंगल कोटेशन। अभी हमने क्या किया, जो भी कुछ प्रिंट करना है वो एक बार में पूरा सिंगल कोटेशन के अंदर डाल दिया। जहां पर वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी थी वहां पर प्लेस होल्डर लगा दिए, केवल कर्ली ब्रेसेस ही लिख सकते हैं। एंड फाइनली, अच्छा देखो, स्ट्रिंग को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं ना सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर, ठीक है। तो हमने इसको भी हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग ही बोलेंगे ना। इस स्ट्रिंग पे हमने एक फंक्शन कॉल किया डॉट फॉर्मेट। डॉट लगाना कंपलसरी है, ठीक है, डॉट लगाना कंपलसरी, क्यों कंपलसरी बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। डॉट फॉर्मेट फंक्शन का नाम क्या है, डॉट फॉर्मेट। और किस सीक्वेंस में वैल्यू चाहिए, तो मैंने नेम लिखा, ये नेम कहां पर प्रिंट होगा, इस लोकेशन पर, ठीक है। लेट मी विजुलाइज, सब आएंगे, अभी एक बताता हूं मैं, एक सेकंड, लेट मी विजुलाइज, लेट मी विजुलाइज, देखो, लेट मी या, ओके। तो ये प्रिंट का क्लोज, ठीक है जी। भाई ये प्रिंट का स्टार्ट हुआ, ये वाला, और ये देखो यहां क्लोज हो गया, ये वाला यहां क्लोज हो गया। कोई डाउट नहीं ना? फिर इस फॉर्मेट फंक्शन के भी तो है अपने, जो कि ये वाला है तो ये यहां पर क्लोज होगा, यानी कि ये वाला पेयर है, ये पेयर ये वाला है। कोई डाउट नहीं है ना? तो अब इस लोकेशन पर मुझे नाम चाहिए था, तो मैंने पहले क्या लिखा, नेम। फिर इस लोकेशन पे मुझे क्या चाहिए, इस प्लेस होल्डर पे एज चाहिए, तो मैंने एज लिखी। सपोज मुझे एज यहां पे चाहिए होती तो मैं क्या लिखता, पहले एज लिखता, और यहां पे नेम चाहिए होता तो फिर कॉमा नेम लिख देता, बस खत्म। इतना ही करना है। तो ये थोड़ा सा जो आपका हेक्टिक वाला पार्ट है ये हम रिमूव कर सकते हैं, एंड वी कैन यूज सम सिंपल कोटेशन। No remember of the comma and all, just write the placeholder, just provide the placeholders। even let's suppose मैं यहाँ पे नाम 2 बार प्रिंट करना चाहता हूँ सर, ठीक है सर, नाम मैं 2 बार प्रिंट करना चाहता हूँ अरुण, तो नेम कॉमा नेम लिखना पड़ेगा। भाई ये नेम प्रिंट हो गया इस प्लेस होल्डर पर, इसके लिए क्या है, इस पर क्या प्रिंट कर देगा अगर नहीं लिखेंगे तो, अभी सिचुएशन में एज प्रिंट कर देगा, और इसको कहेगा कि भाई इसके लिए वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। तो प्लेस होल्डर, all placeholder must be match number of variables। How many placeholder we have? 3, the number of variable must be 3, ठीक है। if I try to do like this, immediately generate error, replacement index 2 out of range positional arguments tuple। कह रहा है कि जो आप रिप्लेसमेंट कर रहे हो ना, इंडेक्स 2 आउट ऑफ रेंज है भाई, आप 3 प्रिंट कर रहे हो, दे दो रहे हो, ठीक है। एक टपल वपल की टर्मिनोलॉजी ये बाद में पढ़ेंगे अभी, है ना, इस पर ध्यान मत दो। अब ये सिंपल समझो मेरा डेफिनेशन कि भाई आप 3 दे रहे हो, 2 प्रिंट कराना चाह रहे हो, हाउ इट इज पॉसिबल, ठीक है। सो आइदर यू वांट टू प्रिंट नेम और एज 2 टाइम, और एज वट एवर यू वांट टू प्रिंट, जस्ट प्रोवाइड 2 टाइम्स हियर, नेम कॉमा। तो फर्स्ट प्लेस होल्डर नेम, सेकंड प्लेस होल्डर नेम, एंड थर्ड प्लेस होल्डर विल बी एज। आई थिंक डेफिनेशन नहीं बन रही है, बट कोड समझ में आ रहा होगा, मतलब सेंटेंस नहीं बन रहा, दैट इज नॉट द मैटर, मेरा कोड समझाना पार्ट है। क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है। सो
now we have completed today's session. Okay, and yes, online people, any any question, any requirement, any explanation required? I'm disconnecting my recording first.